स्वागत समारोह of Rajeshri Mahan Dr. Ram Sundar ji in our institution GLD Public School Khairta. I am highly honored and feel privileged to have been given the opportunity to address you everyone on this very special occasion. The motto of this event is to encourage our students and staff with the blessing from the iconic leader and living inspiration of Chhattisgarh, Rajeshri Maharaj. We also have arranged a small cultural program to make this event more attractive. Before the program starts, I would like to request all the teachers, students, well-wishers and support staff who are an important part of this institution. I also request everyone to kindly cooperate with us throughout the program to make it successful. Okay? So, now, in this context, I would like to invite my co-anchor and my colleagues, Mohammad Safi, for Ashan Sthapana. Please. भारत माता की वंदे वंदे महामहनीय में भाविन त्वदीयं स्वागतं कुर्मः पुरोगीवाण भाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतं मेततियं मङ्गलमयी बेला वयं यद् बालिकायते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न कांची भावना भक्ति न कांची साधना शक्ति परम श्रद्धा सुमंजलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदन्मेतदेवैकं न बालविस्मृतिनेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न धूपं दीपनैवेद्यं न किञ्चित् भक्तिसाहित्यं न पुष्पं चन्दनं श्रीमन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः भारत माता की Thank you, Safi sir. Flowers are the beauty of nature. Flowers are the beauty of nature, which express humility and tenderness of human emotion. They reflect both warmth and welcome. I request the icon of this institution, the president of GLD Public School Khairta, Shri Chandra Kumar Devangan sir, to present a bouquet as an expression of our attention to our chief guest. Maharaj, please. Jordar Tali. And also I request our president sir to offer a badge to the chief guest. Okay, thank you sir. Next, I would like to invite our dynamic director sir of this institution to welcome Kamlesh Baba. Sir, please. आप लोगों की तालियों में ना कमजोरी, हाँ. Okay, next, I would like to invite our principal sir to welcome Rajesh Sharma ji, please.
तालियां ना नहीं रुकनी चाहिए। ओके, next I would like to invite Jay Prakash Rahi sir to come to the stage and welcome Yogesh Maharaj. To welcome Yogesh Maharaj, please जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। Jay Prakash Rahi is a dynamic physics lecturer and mathematics teacher in our institution. So please. थैंक यू महाराज, आपका पुनः सौभाग्य था कि आप हमारे बीच आज उपस्थित हैं। धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट टू वेलकम आई वुड लाइक टू इनवाइट आर.के. साहू सर टू द स्टेज प्लीज एंड वेलकम टू प्रमोद सिंह। गिव अ बुके एंड बेस्ट टू प्रमोद सिंह एंड वेलकम। Okay, next I would like to welcome Umesh Banjari sir to stage. Please Umesh sir, and to welcome Ishwarlal Devangan from Kera. Okay. Yeah. Okay. Okay, next to welcome Jagdish Chandra, may I call Vikas Yadav sir to the stage, please. Hello. Keep clapping. Okay, again I would like to invite Principal sir to welcome our chairman sir. Please give a big round of applause for our chairman sir. मैम आइए आप स्टेज पे आइए। एक तो चेयर लेके आएंगे बारीक सरवानी से। है Okay. Yes. And I also request Principal sir to welcome our chairman ma'am. Please give a big round of applause to our Principal sir and both chairman sir and chairman. Yes. Last but not the least, again I would like to invite R.K. Sahu sir to welcome Nirmal Das, the media प्रभारी. Okay, please. जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए निर्मल दास। नेक्स्ट टू वेलकम मनीराम यादव, आई वुड लाइक टू वेलकम विकास यादव अगेन प्लीज। विकास यादव सर कम टू द स्टेज टू वेलकम मनीराम यादव। Okay, thank you, our chief guest and all dignitary. Okay, so light symbolize knowledge and divinity. It is not only dispel darkness but also illuminates our soul. I request our esteemed chief guest to kindle the auspicious lamp to embark on today's proceeding. मैं हमारे मुख्य अतिथि श्री पूज्य राजश्री महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म
आत्मज्योति नमो आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। सभी हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। से कुंजितध्वनि मंगलम मन की वीणा से कुंजितध्वनि मंगलम स्वागतम 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 सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है कैसा पावन सुहावन समय आज है आप आए अतिथियों में सरताज है देव की भांति पूजन करें आज हम देव की भांति पूजन करें आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। भारत माता की आदरणीय महाराज श्री राम सुंदर दास आए हुए मेहमानगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों शिक्षक। रामायण में कथा आती है भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुंचते हैं। सबरी के आश्रम में पहुंचने के बाद में सबरी उन्हें बेर खिलाती है तो वो आनंद अतिरेक में इतना भूल जाती है कि मैं जो बेर खिला रही हूं वो मेरा झूठा बेर है। प्रेम से भगवान उसको प्रेम में खाते हैं। जैसे सबरी का हाल था आज वैसी मेरा ही हाल है। मैं अपने पूज्य श्री श्री 108 श्री राम सुंदर दास महाराज जी को प्रार्थना किया
महाराज जी, आप मेरे स्कूल में चरण रखिए। उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करके आज अपना अमूल्य समय दिए। मैं इस महाराज के पधारने को एक सपना मान रहा हूं। मेरा अहोभाग्य है कि महाराज जी आज इस स्कूल में हम सबको दो शब्द आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस खुशी में मैं सबरी की तरह बोल नहीं पाऊंगा। मेरा जुबान कुछ बोलेगा, मैं खुशी के मारे कुछ बोलूंगा। मैं महाराज जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं, इस बार तो हमने बुलाए हैं तब आए हैं। महाराज जी से प्रार्थना करूंगा मैं जब भी हो इस रास्ता से गुजरे, इस स्कूल को अपना समझें, अपना समझ करके यहाँ दो पल बच्चों को प्यार दें, अपना स्कूल समझ करके मुझे आशीर्वाद दें। वो बिन बुलाए आए, ये हमारा साला परिवार फूल माला लेकर के नहीं, उनको पलक पावड़े बिछा करके हम इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी से मैं उनके चरण कमलों में जगह पाने के लिए प्रार्थना करता हूं और महाराज जी से निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन में मेरे बच्चों को आशीर्वाद के रूप में दो शब्द बोलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यापक आदरणीय राजश्री डॉक्टर राम सुंदर दास जी महाराज, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई कमलेश जी, इस विद्यालय के संस्थापक और अपने परिश्रम से विद्यालय को इस रूप तक पहुंचाने वाले श्री लालू प्रसाद जी देवानंद, श्री निर्मल दास जी, श्री राजेश शर्मा जी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण, प्रबंधकारिणी समिति के समस्त पदाधिकारी, ग्राम और आसपास क्षेत्र से पधारे हुए समस्त जिम्मेदार नागरिक बंधुओं, इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही शुभ दिन है। जैसे कि प्रतिष्ठा ने कहा, संतों के दर्शन बड़े पुण्य के पश्चात होता है और इस अवसर में एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जैसा उसने कहा, हमारा देश त्यागियों का देश है, वैरागियों का देश है, जो देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। उनकी पूजा होती है इस देश में, उनका सम्मान होता है इस देश में। संग्रही तो बहुत हुए, राजा महाराजा बहुत हुए, उनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में त्यागियों की, वैरागियों की पूजा होती है। महाराज जी ने भी अपने गुरु के बताए हुए परंपरा को आज तक कायम रखा। उनके गुरुदेव साकेतवासी महंत वैष्णवदास जी महाराज ने अपने कार्यकाल में रायपुर में दुधाधारी वैष्णव महिला महाविद्यालय की स्थापना की थी। अभनपुर में भी विद्यालय की स्थापना की। सैकड़ों एकड़ जमीन जनहित के कार्य में दिए। महाराज जी ने भी अपने गुरु की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस परंपरा को कायम रखा। रायपुर में भी अनेकानेक जनहित के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसा अभी उस प्रतिष्ठा ने कहा, अंतरराज्यीय जो बस स्टैंड नया बना हुआ है रायपुर में, 30 एकड़ जमीन, आज एक डिसमिल जमीन के लिए भाई भाई को काट डालता है।
एक डिसमिल जमीन कोई छोड़ना नहीं चाहता है। मेड़ को यदि कोई भाई थोड़ा सा काट लेता है तो दूसरा भाई मार डालता है। इस परिस्थिति में 30 एकड़ जमीन जनहित के लिए निस्वार्थ भाव से काम दिया। इसीलिए ऐसे शुभ कार्य करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने महाराज जी का सम्मान किया था और भामा शाह पुरस्कार, जानते हैं भामा शाह कौन था? भामा शाह उस समय एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने अपना सर्वस्व दान देकर के, अपना सब कुछ, मात्र उनके शरीर में कपड़ा रह गया था, अपना चल अचल संपत्ति सब कुछ देश के लिए दान किया था। ऐसे महापुरुष के नाम से शासन की ओर से भामा शाह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। ऐसे योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। महाराज जी ने उस योग्यता को पार किया और राष्ट्रपति जी को विवश होकर के यह पुरस्कार देना पड़ा था। सन 2010 और 2017 में महाराज जी ने इस राज्य की विधायक के तौर पर सेवा की और आज भी लोग याद करते हैं, आज भी लोग याद करते हैं जिस जिस क्षेत्र में महाराज जी ने सेवा की, रामगढ़ क्षेत्र और जयजयपुर क्षेत्र, ऐसा सक्रिय विधायक ना तो आज तक कोई है और ना आगे होने की कोई संभावना नहीं। उन्होंने यह कार्य किया। इसी कारण से 2010 में उनको विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक, जो जनहित के कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर शासन के ध्यान में लाए और उसे कार्यान्वित कराए, लोगों को लाभ हो, नागरिक उस लाभ से वंचित न रहे, ऐसा काम करना, रात दिन लगे रहना। एक बात कहने में मुझको बिल्कुल भी झिझक नहीं है। आज भी कोविड काल गुजरा 2 साल का, उस काल में भी जितना प्रवास महाराज जी ने किया, मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा, महाराज जी इस कोविड काल में आप अपने को बचा करके प्रवास करें। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ आज हमारे बीच उपस्थित हैं और वास्तव में जैसा मैंने कहा, यहाँ त्यागियों की पूजा होती है, वैरागियों की पूजा होती है, राजा की पूजा नहीं होती। राजा थे दशरथ, उनकी पूजा कहीं नहीं होती है। यदि राम वनवास नहीं जाते, यदि अयोध्या के राज्य का त्याग नहीं करते तो वो राम नहीं बनते और उनकी पूजा नहीं होती, वो भी एक राजा बन जाते। इसी तरह सारा प्रमाण हमारे पास, इतिहास हमारा प्रमाण है कि यह देश उनका ही सम्मान करता है, उनकी ही पूजा करता है, जो देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, स्वाभिमान के लिए और हमारे संस्कृति के लिए अपना सर्वस्व बिताने को, अपना समय देने को, अपना तन मन धन अर्पित करने के लिए जो तैयार रहते हैं, ऐसे एक महापुरुष हमारे बीच हैं। मैं उनसे ही आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, सरस्वती मातेश्वरी की, श्री शिवनारायण भगवान की, गौ माता की। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित भागवताचार्य, मानस मर्मज्ञ, हमारे अभिनय सहयोगी पंडित योगेश शर्मा जी, जिनका वक्तव्य भी आपने सुना है, 15 अगस्त को भी आपने उनको सुना था। आदरणीय श्री ललन देवांगन जी, जो इस संस्था के संस्थापक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनके दोनों चिरंजीव देवांगन बंधु यहाँ उपस्थित हैं। श्री राजेश शर्मा जी, जो शिवनारायण के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। श्री कमलेश बाबा जी, जो जनपद पंचायत नवागढ़ के सम्मानित जनपद सदस्य हैं। श्री जगदीश चंद्रा जी,
ईश्वर देवांगन जी, निर्मल दास जी वैष्णव, अधिवक्ता प्रमोद सिंह जी, श्री एल.डी. आदित्य जी, संस्था के सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक शिक्षिकाएं, आदरणीय देवांगन जी और माता श्री भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके अथक प्रेरणा से, अथक प्रयास से यह संस्था आज इस रूप में संचालित हो रही है। उपस्थित सभी बंधुजन, शांति और सुरक्षा के प्रति पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण, छात्र एवं छात्राएं, आज बहुत ही सुखद अवसर है कि अभी अभी हम सब ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया है और उसके बाद आज इस बहुत ही अच्छा विद्यालय, क्योंकि अभी तक केवल मैं इस विद्यालय के विषय में सुना था, आज आकर के स्वयं अपने नजरों से, अपने सहयोग के साथ मैंने देखा है। हमारा जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था, जो व्यवस्थित ढंग से यह भवन और यहाँ छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं, जिला मुख्यालय में यह व्यवस्था होगी, ऐसा मुझे लगता है। देवांगन जी पेशे से शिक्षक रहे हैं और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सुलभ, सहज शिक्षा प्राप्त हो सके, इस नाम से उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा है और इस विद्यालय को नींव रखा है। केवल 3 वर्ष इस विद्यालय को हुआ है और इतने अच्छे छात्र छात्राएं यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। आज कुमारी प्रतिष्ठा कुमार ने मंच में आकर के जिस प्रकार से मेरा अपना स्वयं का जीवन परिचय उन्होंने आप सबके सामने रखा, बिना कहीं कोई देखे, बिना कहीं कोई कागज के, तो निश्चित यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं इस योग्य छात्रों को बना रहे हैं, इस बात की मुझे खुशी है। मैं बहुत इत्मीनान से सुन रहा था कि बोलते बोलते कहाँ किसको ज्यादा वक्त देना है, वह भी उनके बोलने में अनुभव हो रहा था, आभास हो रहा था। बहुत ही अच्छा यह विद्यालय अपने प्रारंभिक काल में इस स्थिति में है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस संकल्प के साथ आदरणीय देवांगन जी ने इस विद्यालय का स्थापना उन्होंने किया है, छोटे से वृक्ष उन्होंने छोटे से पौधा लगाया है, आगे चल निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा वृक्ष साबित होगा, इस क्षेत्र का एक आदर्श विद्यालय होगा, ऐसा विश्वास करता हूँ। शिक्षकों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, यह विद्यालय है, हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने विद्या के विषय में कहा है कि विद्या क्या क्या प्रदान करती है, कि विद्या विदाति विनयम विनयादाति पात्रतम पात्रतवा धनम आपनोति धना धर्म तथा सुखम, ऐसे कहा था कि विद्या सबसे पहले यदि चीज कोई प्रदान करती है तो विनम्रता प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम। अब आज समाज में इसी चीज की कमी है, लोग विनम्र होना नहीं चाहते हैं। आज पालक अपने बच्चे को PP1 में भी, नर्सरी में भी पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उनके मन में एक लालसा होती है कि मेरा बाल कितना जल्दी पढ़े, कितना जल्दी पढ़े और स्वयं भी सुख सुविधा से रहे, मुझे सुख सुविधा से रखे। कुल मिलाकर के आर्थिक उपार्जन की जो बात है उसके मन में
बचपन से ही डालना शुरू करता है पालक। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि विद्या ददाति विनयम, विनया दाति पात्रतम, पात्रतवा धर्म आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम, ऐसे कहा गया। सुख का जो नंबर है वो चौथे नंबर पर है। सबसे व्यक्ति विनम्र बनता है, विनम्र बनने के बाद जब पात्र हो जाता है, योग्य हो जाता है, तब फिर धन कमाता है। और धन से जब धर्म कर लेता है, धर्म करने के बाद वह धन जब पवित्र हो जाता है, तब कहीं जाकर के उपभोग का अवसर आता है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। इस सीढ़ी से हमको आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन आज लोग सबसे पहले धन कमाना चाहते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति की जो स्थिति है वो आज हम देख रहे हैं। इस मंच पर भी हम सब ने इस मंच पर आए हैं, तो इस मंच पर आने से पहले सीढ़ी का हमने उपयोग किया। अब सीढ़ी में चलकर के इस मंच तक सकुशल पहुंचे हैं। नीचे से एकदम छलांग लगा करके हम ऊपर आए, तो यह बात निश्चित है कि आपके सामने वार्तालाप करने के बजाय किसी अस्पताल में अपना इलाज कराए होते, छलांग लगाए होते, हाथ पैर टूट गया होता। यही स्थिति आज हमारी भारतीय संस्कृति का है। तो इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं शिक्षक शिक्षिकाओं से कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप पढ़ाएंगे वैसे वो अपने जीवन में उसको धारण करेंगे। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, निश्चित ही उसी प्रकार से आप विद्या अध्ययन कराएं, ऐसा मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। बहुत ही सद्भावना के साथ, बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की स्थापना आदरणीय देवांगन जी ने किया है। इस क्षेत्र के रहने वाले छात्र छात्राएं सहज और सुलभ शिक्षा अपने गांव में, अपने गांव के नजदीक प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से उन्होंने इसको प्रारंभ किया है। उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूं, और यह मैं कामना भी करना चाहता हूं कि इस विद्यालय पर छात्र छात्राएं योग्य बनेंगे, आदर्श नागरिक बनेंगे। इस विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम, इस क्षेत्र का नाम वे लोग आगे और बढ़ाएंगे, ऐसे में हम बिना बुलाए आए। तो निश्चित रूप से जो आशा आदरणीय देवांगन जी से है, निश्चित ही यह विद्यालय हमारा अपना है। अब इस विद्यालय के उत्तरोत्तर विकास के लिए मेरे लायक कहीं भी कोई बात हो तो मैं आपके साथ हर समय खड़ा हुआ मिलूंगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। स्पीच इंग्लिश में होता है, लेकिन आज मैं हिंदी में जरूर बोलूंगा। हम भारत माता की जय जरूर सुने थे, हम छत्तीसगढ़ माता की जय जरूर सुने थे, लेकिन आज मैं पहली बार सुना जय गौ माता जी। इसको हम हमेशा याद रखेंगे। और मैं सभी बच्चों से, सभी टीचर से निवेदन करता हूँ, कभी भी आपके आस पड़ोस में अगर कोई गौ माता को चोट पहुँचा दे, आप उनको मदद करें। कोई भी गौ माता को आज से कोई हानि नहीं पहुँचना चाहिए। ये जो मेरे दो हाथ हैं, इसमें आप सब बसते हो। इसमें GLD पब्लिक स्कूल बसता है, इसमें चेयरमैन सर बसते हैं, चेयरमैन मैडम बसते हैं, उनके दोनों सुपुत्र बसते हैं, यहाँ सब बच्चे बसते हैं। और प्रोग्राम के आखिर में ये दोनों हाथों से महाराज का आशीर्वाद लेके मैं अपने आप को धन्य महसूस करूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, all parents, drivers, students, and every staff for cooperate us. Thank you. Thank you. Thank you so much. Please, go in queue, okay? Go in queue. Your teachers will help you. Yes. Hello.